Hello, friends. Welcome, all of you. We'll start this session just at 4 p.m. 1 minute left. But before the session, let me to say your comments, your suggestions that I will get. I have my mobile phone with me. But after taking the session, I will take all your comments. So don't be worried. You give your comments, your difficulties, your queries. You write your queries, and after taking the session, then definitely I will give a response of your queries. We'll just start within few seconds. Okay, friends. Now it is exactly 4 p.m. As per our planning, let us take today's first session of this group. The group is IGNU MA Education Learners. So, friends, earlier I have taken many sessions in YouTube and also in Facebook in Indira Gandhi National Open University official Facebook page, as well as in my Facebook. I was trying to reach at you all, especially the MA education learners, because I am the co-coordinator of this program. And the situation, if you consider today's situation, it is very critical. You all are, experiencing it at your different places, different states. They have, now you will find that the lockdown is going on in different states. You might be facing difficulties to come contact with your study center, to come contact with your regional center, to come contact with your supervisor, with your guide for pursuing your study. So, keeping in consideration of all such things, then I thought directly to address you, especially on you can say on some of the important topics at present, especially the second year MA education programs. They are engaged themselves in preparing their research proposal, and after that they have to conduct a piece of study, a type of dissertation work, a research, a type of investigation. Then they have to submit a report. So to make your work easy, then I thought to take a few sessions. So आज हम पहला सेशन ले रहे हैं इसी ग्रुप में. इससे पहले तो मैंने बहुत सारे सेशन लिया हूँ, तो मेरा कोशिश रहेगा कि रेगुलर मैं आपसे संवाद करूं, और जो आपका समस्या है वो समस्या को हम समझें और उसके अनुसार आपको जितने संभव हम मदद कर पाएँ, ताकि आपका जो स्टडी है ये इजी हो. So, friends, let me to welcome you all on my personal behalf. I, Dr. Niradhar De, faculty member, School of Education, Indira Gandhi National Open University, and on behalf of my school, that is School of Education. Today's topic that we have taken, that is research methodology, part 1, and especially we will be discussing on descriptive studies. And this topic has been taken from two different courses of your MA education program. First is the MESP 001 dissertation. This is a 10 credit course, and you know that you have to study this course in the second year of the MA education program. And second, the another course that you have already studied in the first year of your MA education program, or the learners who are at present in the first year, they might be studying this course, that is MES 011 Educational Research. Okay, so MES 011 Educational Research is the theoretical course. So after going through this course, you will get a detailed theoretical understanding of how to
conduct a research in education. And further in the second year, this course dissertation that has been specially kept to provide you a type of practical orientation, a practical to develop certain skills and competencies for conducting research in education. So that's why you have to do a dissertation in the second year. So the theoretical course, the theoretical concept and understanding that you have gained from the course educational research will help you a lot for conducting your dissertation, that is in the second year, that is MESP 001. The course is dissertation. So friends, मेरा जो आज का जो संवाद है, हम कोशिश करेंगे दोनों मीडियम में हमने करें, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, क्योंकि हमेशा जो लर्नर्स है उनके तरफ से एक डिमांड रहता है कि सर हिंदी में भी बोलिए, दोनों लैंग्वेज में बोलिए, क्योंकि हमारा जो लर्नर्स है ये दोनों मीडियम में है. तो मैं आपको बता दूं, जो मटेरियल हमने डेवलप किया, जो प्रोग्राम हमने डेवलप किया, ये इंग्लिश मीडियम में हमने डेवलप किया. सेल्फ लर्निंग मटेरियल आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, बट एट द सेम टाइम you can write your term and examination in both the languages, both in English and Hindi. You can write your assignment question also both in English and Hindi. You will get term and examination question as well as assignment question in Hindi also. Then further, this course, that is MESP 001 dissertation course, this is a practical oriented course. You have to submit a dissertation report. Okay, so here also for preparing a research proposal for conducting the dissertation, you can write it in both the languages. You can write it in English or in Hindi, and the dissertation report that you have to submit, that also you can submit in both the languages. Okay, you can prepare in Hindi as well as English. So इतने ही स्कोप इसी प्रोग्राम में है कि आप टर्म एंड एग्जाम हिंदी में दे सकते हैं, आपका असाइनमेंट आप हिंदी में लिख सकते हैं, और डिसर्टेशन कोर्स का जो रिसर्च प्रपोजल है अप्रूवल के लिए हिंदी में आप लिख के सबमिट कर सकते हैं, और जो डिसर्टेशन रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे वो भी आप हिंदी में सबमिट कर सकते हैं. ठीक है, तो जो कमेंट्स आपका आएगा ये सेशन के बाद, वो कमेंट्स का मैं रेस्पॉन्स करूंगा. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक लिए हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी पार्ट 1 डिस्क्रिप्टिव स्टडीज, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे. और आपको मैंने बता दूं, इससे पहले जो सेशन अभी तक मैंने लिया, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स दैट हाउ यू कैन प्रिपेयर ए रिसर्च प्रपोजल. आई हैव डिस्कस्ड ऑन द रिसर्च प्रॉब्लम, सो द समस्या आप कैसे चयन करेंगे, देन एक स्टडी को डिलिमिट आप कैसे करेंगे, ठीक है, और उसका ऑपरेशनल डेफिनेशन कैसे आप जो न्यू टर्म्स, न्यू वर्ड्स, न्यू कंसेप्ट आप अपना स्टडी में लिए हैं, उसे ऑपरेशनली कैसे आप डिफाइन करेंगे. आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, देन हाइपोथेसिस. ठीक है, ये सब मैंने डिस्कशन कर चुका हूँ. ये सब इग्नू फेसबुक पेज में ये अवेलेबल है, आप उसका जो पूरा वीडियो आप देख सकते हैं. ठीक है, और सैम्पलिंग, आई हैव ऑल्सो टेकन 2 सेशंस. One is for the probability sampling technique and other is for the non-probability sampling technique. ठीक है, तो ये सब कंपोनेंट ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं. तो आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो रिसर्च मेथोडोलॉजी, कौन सा रिसर्च मेथड्स आप यूज करेंगे, और जो रिसर्च मेथड आप यूज करेंगे उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, उसका डिजाइन आप कैसे करें, इसके ऊपर हमारा चर्चा रहेगा. सो फ्रेंड्स, लेट अस गो फॉरवर्ड to discuss today's topic, that is research methodology, and particularly one research method, that is descriptive studies. So friends, I have already said that 2 important documents that we have given to you, that is one is MES 016 educational research, then the other is handbook on dissertation work. ठीक है, so both these documents are available in the eGyan course portal of Indira Gandhi National Open University. Okay, so what you can do, if you have not received the hard copy of the material, you can just take out the printouts.
of these two documents. One is your MES 016 educational research and other is handbook on dissertation work. So you will get clear support that first of all from the course MES 016 you will get a detailed theoretical understanding that how you can conduct your study, and further second when you will go through the handbook on dissertation work, here you will get an understanding that how you can proceed step by step. So what we have done in the handbook of dissertation work, we have taken few examples. Okay, we have taken few research title और उसी रिसर्च टाइटल को बेस करके शोध समस्या आप कैसे लिखेंगे और समस्या जो है टाइटल है, देन फर्दर उसका रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर कैसे आप लिखेंगे, देन आफ्टर वो स्टडी को डिलिमिट आप कैसे करेंगे, ऑपरेशनल डेफिनेशन कैसे करेंगे, ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस कैसे आप स्टेट करें, सैम्पलिंग आप कैसे करें, ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी कौन सा आप यूज करें, ठीक है, और टूल्स कौन से टूल्स आप यूज करें, तो ये सभी हमने डिस्कशन किया है. एंड आई एम श्योर दैट इफ यू गो थ्रू दिस टू डॉक्यूमेंट्स then 50% of your difficulties will be solved. Okay, and further I am taking this session. You can also write a mail to me. You can also write your comment on the Facebook so that I will try my best to provide you the necessary response. So friends, these two supports documents that we have developed, and definitely I am very much hopeful that when you are engaged for developing the research proposal and pursuing the dissertation course, definitely go through these two documents. Next, today's discussion points, I have taken 4 discussion points. First of all, we will try to understand the concept of a research methodology. Research methodology का क्या concept है, ठीक है, ये हम discussion करेंगे. Then second is concept of the use of descriptive studies in research. ठीक है, research में जो research methodology हम use करेंगे उसमें डेस्क्रिप्टिव स्टडी का क्या अर्थ है और इसका क्या कंसेप्ट है हम डिस्कशन करेंगे, और डेस्क्रिप्टिव स्टडी क्या है. फर्दर द नेक्स्ट डिस्कशन पॉइंट विल बी टू एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेस्क्रिप्टिव स्टडीज. डेस्क्रिप्टिव स्टडी कितने प्रकार की है, डेस्क्रिप्टिव स्टडी सिर्फ एक नहीं है, ये एक ब्रॉड टर्म है. एंड अंडर द डेस्क्रिप्टिव रिसर्च or the descriptive method or the survey research, you will find that many methods that you can use. So friends, that also we will discuss. Then further, the fourth discussion point is design research as per the descriptive study. So जब descriptive study method आप follow कर रहे हैं, आपका research को कैसे, how you can just design your research, how you can adopt a suitable process and procedure for conducting your research, that also we'll discuss. So friends, now let us go forward. I have already discussed in my earlier video lessons that different components of research in education. Education में जब एक शोध कार्य हम करते हैं उसका अलग अलग components of क्या है, जैसे कि selecting a research problem, एक शोध समस्या आपको select करना पड़ेगा. देन रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, जो अवेलेबल लिटरेचर है, जो स्टडीज पहले हो चुका है, उसका एक रिगरस एनालिसिस आपको करना पड़ेगा. एनालिसिस करके रिसर्च का गैप आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि व्हाट हैव बीन अर्लियर डन एंड व्हाट हैज नॉट बीन डन येट. पहले क्या हो चुका है और अभी तक कौन सा चीजें वो नहीं हुआ है, और जो कि आपका रिसर्च वही करने जा रहा है. तो इसीलिए रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर आपको अध्ययन करना पड़ेगा, उसका एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, करके जो गैप मिलेगा, रिसर्च गैप जो मिलेगा, देन योर रिसर्च शुड ब्रिज दैट गैप. ठीक है, इसीलिए रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर इज आल्सो अनदर कंपोनेंट. देन रिसर्च क्वेश्चन, शोध प्रश्न. आप एक शोधकर्ता है, आपके मन में जरूर प्रश्न होगा. जो स्टडी आप लिए हैं, जो शोध समस्या आप लिए हैं, कुछ प्रश्न को बेस करके वो समस्या होगा जिसको आप अध्ययन करना चाहते हैं. ठीक है, तो रिसर्च क्वेश्चन इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. देन ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, शोध करने का यहाँ क्या उद्देश्य है ये भी आपको लिखना पड़ेगा. देन हाइपोथेसिस, परिकल्पना आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. मैंने परिकल्पना का एक विस्तृत वीडियो लेसन लिया हूँ, जरूर आप उसे देखिए, आपको पता चलेगा कि परिकल्पना क्या है और किस प्रकार परिकल्पना हमें लेना चाहिए. देन फर्दर
ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स यूज्ड, आई हैव ऑलरेडी सेड दैट जो टॉपिक आप लिए हैं संक्रियात्मक व्याख्या उसको आपको करना पड़ेगा कि आपके अध्ययन में वो किस रूप में काम करेगा। जो नया टर्म जो नया कंसेप्ट आप लिए हैं आपके अध्ययन में किस रूप में काम करेगा। देन फॉर द डिलिमिटेशन ऑफ योर स्टडी, आपका स्टडी को सीमांकन आप कैसे करें। ठीक है, स्टडी हमेशा व्यापक होता है, तो आपका काम यह है कि व्यापकता से एक रिसर्चेबल फॉर्म तक वो स्टडी को लाना। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू डिलिमिट इट, उसका सीमांकन आपको करना पड़ेगा। ये सब मैंने डिस्कशन किया हूं। देन फर्दर रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसे रेड इंक में मैंने मार्क किया क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है ये रिसर्च मेथोडोलॉजी अंतर्गत है। आगे हम इसका डिस्कशन करेंगे। देन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, आप डाटा जब आपको मिल जाएगा एक टॉपिक टूल यूज करके, व्हेन यू गेट द डाटा देन हाउ यू विल एनालाइज द डाटा। ठीक है, डाटा को एनालिसिस आप कैसे करें, कौन सा स्टैटिस्टिकल टेक्निक आप यूज करेंगे करके उस डाटा को आप एनालिसिस करें, उसका एक डिटेल प्रोसेस, ओके, डिटेल टेक्निक जो आप यूज करेंगे, तो आप ये कंपोनेंट है यहाँ आपको उसका व्याख्या करना पड़ेगा। देन फर्दर फाइंडिंग्स, रिजल्ट एंड डिस्कशन, then after getting the data you have to analyze it, you have to interpret it, and on the basis of analysis and interpretation of the data you have to establish the findings, okay। और जो फाइंडिंग्स आएगा फर्दर आपको क्या करना पड़ेगा, उस फाइंडिंग्स को डिस्कशन करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। फ्रेंड्स, मैं ये डिटेल रिसर्च का प्रोसेस बता रहा हूँ, पर जब एक शोध जो सिनॉप्सिस आप बनाएंगे, ठीक है, जो प्रपोजल आप बनाएंगे डिसर्टेशन करने के लिए, आपको फाइंडिंग्स, रिजल्ट एंड डिस्कशन ये लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस आप लिख दीजिए। उसके बाद इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्टडी, आपका स्टडी किस रूप में महत्वपूर्ण है, किस रूप में ये स्टूडेंट को, किस रूप में ये टीचर को, किस रूप में ये लार्जर एजुकेशन फ्रेटर्निटी को, इंस्टीट्यूशन को, गवर्नमेंट को, पॉलिसीज को मदद करेगा। ठीक है, तो उसका एक जो शैक्षिक महत्व है इस शोध कार्य का, यह आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब एक प्रॉब्लम आप सिलेक्ट किए हैं जरूर कुछ उसका महत्व होगा, तो जो महत्व होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। पर जब डिसर्टेशन रिपोर्ट लिखेंगे तब ये सभी पॉइंट आएगा, पर प्रपोजल में फाइंडिंग्स, रिजल्ट एंड डिस्कशन, क्योंकि ये स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है। आप तो स्टडी नहीं किया है, आप जब आप सिर्फ एक प्रपोजल दे रहे हैं, एक प्रस्ताव दे रहे हैं, क्या शोध आप करना चाहते हैं। सो दैट्स व्हाई फाइंडिंग्स, रिजल्ट एंड डिस्कशन आपका एक कंपोनेंट नहीं होगा प्रपोजल में, ये रिपोर्ट का कंपोनेंट होगा। देन रेफरेंसेस, जो डिटेल चाहिए आप रिसर्च प्रपोजल बनाएं या डिसर्टेशन बनाएं, तो जो जो सोर्सेस आप यूज किए हैं, इट में बी ए फॉर्म ऑफ ए बुक, इट में बी ए फॉर्म ऑफ ए मास्टर डिसर्टेशन, एमफिल डिसर्टेशन और पीएचडी डिसर्टेशन, और इट में बी ए फॉर्म ऑफ यू कैन से आपका एनसाइक्लोपीडिया हो, कुछ रिसर्च जर्नल हो। ठीक है, जहां जहां से आप कुछ डाटा लिए हैं, जहां जहां से आपको कुछ मिला है, मतलब लिटरेचर मिला है जो आप रेफर किए हैं, उसका एक रेफरेंस सेक्शन यहाँ आप डेवलप करेंगे। ठीक है, तो ये आपका डिटेल कंपोनेंट है फॉर कंडक्टिंग रिसर्च इन एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, अभी आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक था रिसर्च मेथोडोलॉजी था। ठीक है, तो अभी हम डिस्कशन करेंगे ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी अंतर्गत क्या क्या आता है। पहले इधर आप देखिए, पॉपुलेशन सैंपल एंड सैम्पलिंग टेक्निक, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, तो ज्यादा टाइम में इसमें लेना नहीं चाहता। देन फर्दर टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर डाटा कलेक्शन, आई हैव ऑलरेडी टेकन ए सेशन ऑन टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर डाटा कलेक्शन, क्या क्या टूल्स आप यूज करेंगे डाटा कलेक्शन करने के लिए। ठीक है, इट मे बी क्वेश्चनियर, इट मे बी इंटरव्यू, इट मे बी ऑब्जर्वेशन, इट मे बी ए टाइप ऑफ रेटिंग स्केल। ठीक है, इट मे बी ए टाइप ऑफ चेकलिस्ट, ये सभी में, और इट मे बी ए टाइप ऑफ टेस्ट, मे बी अचीवमेंट टेस्ट, मे बी इंटेलिजेंट टेस्ट, क्रिएटिविटी टेस्ट। ठीक है, ये सभी मैंने डिस्कशन कर चुका हूँ। और स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड फॉर डाटा कलेक्शन, ये हम डिस्कशन नहीं किया, ये हम एक सेशन में डिस्कशन करेंगे। और आज हम डिस्कशन करना चाहते हैं मेथड्स ऑफ स्टडी और डिजाइन, हाउ कैन यू डिजाइन योर स्टडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। So friends, when we talk about the methods of study, तो आप देखिए यहाँ methods of study, especially for conducting educational research, you will find that we use 4 types of method.
One is the philosophical research or philosophical method, then descriptive research or descriptive study जो भी आप कहें, then experimental research or experimental study, historical research और historical study जो भी आप कहें. So philosophical research, descriptive research, experimental research and historical research. So ये 4 प्रकार का रिसर्च और 4 प्रकार का मेथड जो है हम यूज करते हैं स्पेशली एजुकेशनल रिसर्च में. ठीक है, तो आज हमारा जो कोशिश है उनमें से सिर्फ एक ही मेथड आज लिए हैं, क्योंकि जब रिसर्च मेथड का हम बात करते हैं, दिस टॉपिक इज ह्यूज. ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल टू डिस्कस विद इन हाफ एन आवर और विद इन 1 hour. सो दैट्स व्हाई फ्रेंड्स आई हैव टेकन ओनली वन पर्टिकुलर रिसर्च मेथड, दैट इज डेस्क्रिप्टिव रिसर्च. ठीक है, आज डेस्क्रिप्टिव रिसर्च के ऊपर बात करेंगे, पर थोड़ा सा मुझे कहने दीजिए वेरी क्विकली. फिलोसॉफिकल रिसर्च विच इज मोस्टली क्वालिटेटिव इन नेचर, जो डाटा हमें फिलोसॉफिकल रिसर्च करने के बाद मिलेगा वो एक गुणात्मक डाटा हमें मिलेगा. ठीक है, और वी कंडक्ट फिलोसॉफिकल स्टडी दैट इज जस्ट टू स्टडी ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज, थिंकर और विजन लाइक दैट, just like educational concept of Mahatma Gandhi, concept of education by you can say Rabindranath Tagore or by any educationist. Okay, concept of education as per Swami Vivekananda, Sri Aurobindo, Giju Bhai Badekar. So friends, जब एक फिलोसॉफिकल रिसर्च का हम बात कहते हैं तब जो ग्रेट पर्सनालिटीज है तो उनका जो विजन था, उनका जो आइडियाज था एजुकेशन के प्रति, तो ये हम स्टडी करेंगे. ठीक है, उसी के ऊपर ये स्टडी ज्यादातर किया जाता है फिलोसॉफिकल रिसर्च में, दार्शनिक अध्ययन स्टडी में. देन सेकंड, व्हेन वी टॉक अबाउट द डेस्क्रिप्टिव रिसर्च, यू सी दिस स्टडी इज मोस्टली यू कैन से इट डिनोट्स, इट प्रोवाइड्स और इट गिव्स ए पिक्चर ऑफ द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द प्रॉब्लम. क्योंकि आपको फील्ड को जाना पड़ेगा, आपको डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा. ठीक है, it may be by using a questionnaire or by interviewing the respondents or by observing the situation. ठीक है, और by using certain test. तो फिर जो समस्या आप लिए हैं, जो शोध समस्या लिए हैं, उसका वर्तमान की स्थिति क्या है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ये डेस्क्रिप्टिव स्टडी करके हम अध्ययन करते हैं. सो दैट्स व्हाई वी यूज द डेस्क्रिप्टिव स्टडी टू नो द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है, एंड डेस्क्रिप्टिव स्टडी में 2 प्रकार के डाटा प्राप्त हो सकता है. वन इज द क्वांटिटेटिव डाटा एंड अदर इज द क्वालिटेटिव डाटा. सो फ्रेंड्स, व्हेन आई से क्वांटिटेटिव डाटा, इट मींस जो डाटा आपको मिलेगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, दैट मे बी इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसीज. नंबर और फ्रीक्वेंसीज में डाटा मिलेगा जिसको फर्दर आप स्टैटिस्टिक्स यूज करके उसे एनालिसिस कर सकते हो, उसका मीन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसका मीडियम, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका कोरिलेशन, टी टेस्ट, काई स्क्वायर, अनोवा, ये सभी स्टैटिस्टिक्स आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, और देयर इज द पॉसिबिलिटी टू गेट क्वालिटेटिव डाटा आल्सो. ठीक है, एक नरेशन आपको मिला, एक स्टोरी आपको मिला, वो नरेशन को पढ़ के वहीं से आप डिड्यूस करेंगे, कुछ मीनिंग उसका एस्टेब्लिश करेंगे, फर्दर उसे एक डिस्क्राइब करके यू हैव टू डेवलप ए क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वालिटेटिव डाटा, उसका एक नरेशन आपको डेवलप करना पड़ेगा. सो बोथ टाइप ऑफ डाटा यू विल गेट फ्रॉम द डेस्क्रिप्टिव रिसर्च. और डेस्क्रिप्टिव रिसर्च 3 प्रकार का है, डेस्क्रिप्टिव सर्वे, कोरिलेशनल स्टडी एंड एक्सप्लोरेटिव स्टडी, एंड ऑल्सो केस स्टडी इज ऑल्सो कम अंडर द डेस्क्रिप्टिव स्टडी. ठीक है, डेस्क्रिप्टिव एक हो गया डेस्क्रिप्टिव सर्वे, सेकंड हो गया कोरिलेशनल स्टडी. दोनों वेरिएबल दिया है, आप दोनों वेरिएबल के बीच में कुछ संबंध जानना चाहते हैं, किस प्रकार ये संबंधित है. ठीक है, सो दैट ऑल्सो यू कैन डू. देन एक्सप्लोरेटिव स्टडी, स्टडी हुआ ही नहीं है. ठीक है, यू आर द फर्स्ट रिसर्चर, यू वांट टू नो कि मतलब इसका रिजल्ट किस प्रकार का रिजल्ट आएगा. ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं. Further, the next method that we use in educational research, that is the experimental research. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो डाटा आपको मिलेगा वो मोस्टली क्वांटिटेटिव इन नेचर, यहाँ क्वालिटेटिव नहीं मिलेगा. और एक्सपेरिमेंटल हम रिसर्च करते हैं टू स्टडी द फ्यूचर. ओके, एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हम डेवलप करेंगे, करके
इसका फ्यूचर में कैसे इसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है, उसके लिए हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे। वर्तमान स्थिति के लिए करेंगे, पर इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ये फ्यूचर के लिए रहेगा कि एक स्टडी में यदि किसी एक मेथड का इम्पैक्ट और इफेक्टिवनेस हमें मिला, हम चाहेंगे कि इसे आगे जाकर कैसे यूज किया जा सकता है। देन फर्दर हिस्टोरिकल रिसर्च भी हम करते हैं, और हिस्टोरिकल रिसर्च में जो डाटा आपको मिलेगा ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हो सकता है, बट मोस्टली क्वालिटेटिव एंड लेस क्वांटिटेटिव, ठीक है। और पास्ट ऑकरेंसेस के लिए हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं, जो जो चीजें पहले हो गया है, ठीक है, उसे जानने के लिए, और वहीं से वर्तमान समय में जो कुछ एक प्लानिंग हमें करना है। सो इतिहास से हमें बहुत सारे चीजें एक सीख मिलता है, और उसके अनुरूप फिर वर्तमान को शेप हम देते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी आल्सो डू ए टाइप ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। सो मेरे नेक्स्ट प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे फिलोसॉफिकल, एक्सपेरिमेंटल एंड हिस्टोरिकल स्टडी के बारे में हमने डिस्कशन करें, पर आज हम डिस्कशन करेंगे डेस्क्रिप्टिव रिसर्च के ऊपर। सो चलिए डेस्क्रिप्टिव रिसर्च के ऊपर क्या क्या पर्टिकुलर मेथड्स है ये हम डिस्कशन करेंगे। नाउ लेट मी टू क्लियर अबाउट द concept of descriptive research. So I have already said that we use the descriptive research to study the present and existing status of the problem or the phenomena, ठीक है। प्रेजेंट स्टेटस, वर्तमान जो समस्या आप लिए हैं उसका वर्तमान स्थिति क्या है, ये जानने के लिए हम अध्ययन करते हैं। देन descriptive studies are restricted not only to fact finding but may often result in the formulation of important principles of knowledge and solution of significant problems concerning local, state, national and international issues. So many a time by conducting descriptive studies हमारा local level का जो problem है, it may be problems related at the school level, okay, so ये भी हम solve कर सकते हैं। state level थोड़ा बड़ा study हम करेंगे, यदि population एक state का population को हम लेंगे तो problems related to a state in the area of education, in the sphere of education, that also we can do, we can solve. Then national and international issues, so many national international issues के ऊपर भी हम अध्ययन कर सकते हैं। Then descriptive study investigate phenomena in the natural setting. आप देखिए natural setting means what? You have to go to the field, okay, you have to meet to the subjects. Your subjects means maybe the teacher, maybe the students, maybe you can say parents, maybe the community members, maybe the local government. So you have to interact with them, and by interacting with them you have to collect data, and on the basis of the data you have to analyze and interpret, and you have to get the findings. So that's why natural setting में एक होगा, आपको विजिट करना पड़ेगा डिफरेंट प्लेसेस, ओके, फील्ड विजिट आप करेंगे जहां से हमको डाटा प्राप्त होगा। और जो इसका पर्पस जो है, इसका पर्पस इमीडिएट भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, ठीक है। इमीडिएट सोल्यूशन, आपका जो समस्या है इमीडिएट उसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं, और ये समस्या लॉन्ग टर्म एक स्टडी करके, लॉन्ग टर्म के लिए स्टडी करके भी हम समस्या सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यू सी नाउ दीज आर द डिफरेंट types of descriptive studies, just like on the you see these are the different bases for conducting the descriptive studies, and these are the specific survey studies. You see coverage of population and units, on the basis of coverage of population and units of respondents, we have two types of study, that is census survey and sample survey, ठीक है। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द कवरेज ऑफ द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन हम ले रहे हैं उसको आधार करके यदि हम डेस्क्रिप्टिव स्टडी करें, ये दो प्रकार का होगा, एक सेंसस सर्वे होगा और एक सैंपल सर्वे होगा। आगे हम डिस्कशन करेंगे सेंसस सर्वे क्या है और सैंपल सर्वे क्या है। फर्दर सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ इवेंट और स्टेजेस ऑफ इवेंट स्टडी, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ इवेंट्स, ठीक है, ये इवेंट कब हुआ और कितने स्टेजेस में आपने काम किया, ठीक है, ये दो प्रकार का होगा, एक लॉन्गिट्यूडिनल सर्वे होगा और एक क्रॉस सेक्शनल सर्वे होगा। ये भी हम डिस्कशन करेंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल क्या है और क्रॉस सेक्शनल क्या है, और आपके स्टडी में जो डिसर्टेशन के लिए आप ले रहे हैं तो इनमें से कौन से मेथड होगा। देन फॉर द नेचर ऑफ डाटा एंड मेथड्स इन्वॉल्व्ड, डाटा का नेचर देख के आप
एक डॉक्यूमेंट्री सर्वे रिसर्च भी कर सकते हैं, आपका मेथड डॉक्यूमेंट्री सर्वे भी हो सकता है। देन पर्पस ऑफ द स्टडी, आपका स्टडी का उद्देश्य को लेकर ये स्टेटस सर्वे हो सकता है, कंपैरेटिव सर्वे हो सकता है, या इवैल्यूएशन सर्वे हो सकता है। ठीक है, स्टेटस, कंपैरेटिव एंड इवैल्यूएशन। सो ये जितने प्रकार का हमने अभी नाम लिया स्पेसिफिक सर्वे स्टडीज, स्पेसिफिक सर्वे स्टडीज का, एक एक करके हमने डिस्कशन करेंगे ताकि ये आप इसे ठीक से समझे, और जो डिसर्टेशन आप कर रहे हैं इनमें से कौन सा मेथड आप यूज करेंगे। डेस्क्रिप्टिव स्टडी तो आप लिखेंगे, पर डेस्क्रिप्टिव स्टडी अंतर्गत कौन सा स्पेसिफिक सर्वे स्टडी मेथड आप यूज करेंगे, दैट यू हैव टू मेंशन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द सेंसस सर्वे। सो फ्रेंड्स, व्हेन आई से सेंसस सर्वे, इट मींस इट इंप्लाइज द पॉपुलेशन। ठीक है, जनसंख्या। ठीक, तो पूरा पॉपुलेशन के ऊपर जब आप एक स्टडी करेंगे तो आप कहेंगे कि यू आर जस्ट डूइंग ए सेंसस सर्वे। सो लेट मी टू गिव वन एग्जांपल। जस्ट लाइक इन आवर कंट्री हमारा सेंसस सर्वे होता है, जनगणना होता है, एंड दैट हैपेंस इन एवरी 10 ईयर्स। ठीक है, 2011 में लास्ट हुआ था, 2021 अभी चल रहा है। अभी सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड, ओके, पैंडेमिक सिचुएशन इज गोइंग ऑन, सो दैट्स व्हाई इसका प्लानिंग चल रहा होगा और ये भी होगा। तो ये जो सेंसस सर्वे है 2021, अभी इसका टाइम आ गया है। सो एवरी 10 ईयर्स में हमारा सेंसस सर्वे होता है। सो फ्रेंड्स, नाउ टेल मी, इन सेंसस सर्वे व्हाट डू यू डू? दिस इज ऑल्सो ए पीस ऑफ रिसर्च, एंड हियर the subjects means जिससे हम डाटा कलेक्ट करेंगे। so you see every household are included in a census survey। तो इसमें क्या होता है आप देखेंगे, across India, across different states, ठीक है, हर घर में जाकर, इट में भी रूरल, इट में भी अर्बन, ठीक है, हर घर में जाकर इन्वेस्टिगेटर डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन कितना है, उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड कैसे है, उनका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड कैसे है, ठीक है, उनके पास लैंड से रिलेट करके उनका इनकम, उनका जेंडर, उनके पास संसाधन क्या क्या है, कैटल, नेचर ऑफ हाउस, डोमेस्टिक फैसिलिटीज क्या क्या उनको मिलता है, एवरीथिंग। ठीक है, ये डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो ये सेंसस सर्वे का जब हम बात करते हैं, ये पॉपुलेशन को इंक्लूड करता है, ये इंस्टीट्यूशन का भी इंक्लूड करता है, एट द सेम टाइम ये हाउस होल्ड को भी इंक्लूड करता है, ईच एंड एवरी हाउस होल्ड। तो यहाँ आप किसी एक को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए जो डाटा हमें मिलता है, इतने गहराई से डाटा हमें नहीं मिलता, सरफेस लेवल का डाटा मिलता है, बट ये वाइड पॉपुलेशन कवर करता है और सभी को ये टच करता है। यहाँ एरर करने का जो चांसेस है बहुत कम होता है, क्योंकि सभी पॉपुलेशन को हम स्टडी में इंक्लूड कर लिया, यहाँ सैम्पलिंग हम नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके स्टडी में यदि बहुत छोटा सा स्टडी कुछ आप कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि पॉपुलेशन का साइज जो है ये आपका स्टडी में समाहित हो सकता है, आपके स्टडी में आ सकता है, आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, तो आप भी इस प्रकार का स्टडी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेंसस सर्वे का जो स्ट्रेंथ है, इट इज वेरी यूजफुल टू मेकिंग ट्रेंड एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, लेट मी टू से दैट व्हाट इज ट्रेंड एनालिसिस। आप देखेंगे हर 10 साल में हम एक सेंसस सर्वे करते हैं, या सेंसस सर्वे को आप छोड़िए, जनगणना को छोड़िए, बाकी यदि कुछ पूरा पॉपुलेशन को लेकर एक स्टडी आप करते हैं, एक ट्रेंड आपको पता चलता है। ठीक है, एक किस प्रकार डेवलपमेंट हो रहा है उसका एक ट्रेंड चलता है, लोगों का हैबिट्स के बारे में भी एक चेंज पता चलता है, या चेंजेस जो हमारा सोसाइटी में होता है, लोगों में होता है, प्रैक्टिसेस में होता है। सो वी ऑल्सो गेट ए क्लियर आइडिया about the trends which is going on. Then further, हमें यदि सेंसस सर्वे जब हम करते हैं, एजुकेशन डाटा हमें क्लियर डाटा मिल जाता है, इकोनॉमिक डाटा मिलता है, सोशल डाटा मिल जाता है और हाउस होल्ड डाटा मिल जाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ये जो डाटा है, ठीक है, हम क्या करते हैं, फर्दर जब पॉलिसीज और कुछ प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, ये हमें मदद करता है। जब हमें पता चल जाता है कि मेरे देश में लोगों का शिक्षा की स्थिति क्या है, लिटरेट परसेंटेज कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं, तो उसके अनुसार जरूरत पड़ता है कि कितने को कैसे पॉलिसीज हम लाए, कैसे प्रोजेक्ट लाए, कैसे स्कीम हम लाए,
ताकि पूरा पॉपुलेशन को हम लिटरेट कर सके, ठीक है। और लोगों का पर कैपिटा इनकम कितना है ये भी हमें पता चलता है, लोगों का आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। उसके ऊपर हमें ये मदद करता है फर्दर स्कीम एंड पॉलिसी डेवलप करने में कि किस प्रकार का पॉलिसीज हम डेवलप करें ताकि लोग सेल्फ सेंटर्ड हो, लोगों को उनको एक वर्ल्ड ऑफ वर्क में एंगेजमेंट मिले, ठीक है। एक आइडिया हमें मिलता है, एक डाटा हमें मिल जाता है, और वही डाटा कल के दिन में एक स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट के लिए कंट्री में हमें मदद करता है, ठीक है। तो दीज आर द स्ट्रेंथ्स of conducting a census survey, ठीक है। Then further we will discuss about sample survey, ठीक है, on the basis of population sample survey, ठीक है। sample survey क्या है? तो it is not to conduct a study taking the entire population, ठीक है। entire population बहुत huge है, बहुत large है, many a time their number may be in thousands, their number may be in lakhs, in millions. It's not possible to collect data from each and every individual, from each and every subject, each and every population unit within a very limited time. Because of the paucity of time and resources, हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन से एक छोटा सा ग्रुप हम लेते हैं, एक छोटा सा पोर्शन हम लेते हैं, दैट्स कॉल्ड एज द सैंपल। आई हैव ऑलरेडी टेकन ए सैंपल। सैंपल इज कॉल्ड एज ए रिप्रेजेंटेटिव प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन का यह एक रिप्रेजेंटेटिव प्रोपोर्शन है जो कि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करेगा। मतलब पॉपुलेशन का जितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, सैंपल में वही सब कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आएगा। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स द जेंडर, देयर इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, देयर एजुकेशनल बैकग्राउंड, देयर हैबिटेशन, देयर डेमोग्राफी, ठीक है, सब वही रिप्रेजेंट करेगा। मतलब आपका सैंपल पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें क्या होता है, फॉर कंडक्टिंग योर एमए एजुकेशन डिसर्टेशन और फॉर डूइंग ए टाइप ऑफ पीएचडी स्टडी, पीएचडी में आपको ज्यादातर 5 years टाइम मिलता है, और एमए डिसर्टेशन में यू आर गेटिंग वेरी लिमिटेड टाइम, मे बी फ्यू मंथ्स। तो यहाँ सेंसस सर्वे तो आप नहीं कर पाओगे, तो आप एक सैंपल सर्वे करोगे, पॉपुलेशन को पहले डिफाइन करोगे, उसको लिस्ट आउट करोगे, उनमें से एक छोटा ग्रुप आप लोगे। इट मे बी विदिन 100, इट मे बी 150, इट मे बी 200, ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ योर प्रॉब्लम, ठीक है। और फिर उसी सैंपल ग्रुप के ऊपर आपका स्टडी होगा, और किस टेक्निक में आप पॉपुलेशन से सैंपल आप सिलेक्ट करेंगे ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं मेरा पहला वीडियो लेसन में, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक मैंने डिस्कशन किया, और मैं चाहूंगा आप जरूर वो वीडियोस देखें। Then further, study of sample of schools drawn from a particular district towards implementation of RTR 2009 can be generalized as an implementation status of all the schools of that district. अब देखिए, Right to Education Act which is implemented, Right to Education Act 2009 which is implemented in India on 1st April 2010, ठीक है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ है किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, तो आप क्या करेंगे, किसी एक डिस्ट्रिक्ट का टीचर, स्टूडेंट, स्कूल, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, या गवर्नमेंट बॉडीज, तो एग्जाम्पल लेकर आप स्टडी करेंगे। स्टडी करके जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर उसे जनरलाइज भी कर सकते हैं। आप देखिए, मैंने पूरा पॉपुलेशन नहीं लिया, मैंने पूरा सभी टीचर्स को नहीं लिया, मैंने सभी स्टूडेंट्स को नहीं लिया। व्हाट आई डिड, I took a representative group of population as my sample and I conducted my study on that sample. I think you are understanding my point. So this is the sample survey. आगे बढ़ते हैं। Reason for conducting sample survey I have already discussed. Still then let me to focus upon certain point, that is reduced cost of the study. It reduces the cost of the study. Study का जो cost है, जो cost मतलब जो खर्च है, ठीक है, हम रिसोर्सेस में या हम खुद ही टाइम देते हैं, हम लोगों को एंगेज भी करते हैं, इन्वेस्टिगेटर को एंगेज भी करते हैं, ठीक है। जब सैंपल के ऊपर हम स्टडी करेंगे, पूरा पॉपुलेशन के ऊपर नहीं करेंगे, सो डेफिनेटली हमारा जो कॉस्ट है ये बचत होगा, जो खर्च हम करते हैं, जो अर्थ हम उसमें लगाते हैं, जरूर ये बचत होगा, ठीक है। सो इट रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ द स्टडी। देन सेकेंड, ग्रेटर स्पीड ऑफ द स्टडी। जब एक छोटा सा सैंपल लेकर हम स्टडी कर सकते हैं, आप देखेंगे
कि इट विल नॉट टेक मच ऑफ द टाइम, बट जब सेंसस सर्वे आप करेंगे, जैसे कि जनगणना होता है, इट टेक्स ईयर्स ऑफ टाइम टुगेदर, ठीक है, कितने साल तक ये डाटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज ऑल्सो अन ह्यूज पॉपुलेशन, ठीक है। सो ग्रेटर स्पीड में हम काम कर सकते हैं यदि एक छोटा सा सैंपल लेकर हम हमारा स्टडी करें। देन फर्दर greater scope of the study, here possibility of greater wide range of data from small group of respondents। मैंने आपको कहा जब सेंसस सर्वे आप करेंगे, then what you will find that you have to reach each and every unit of the population, ठीक है। जब आपका पॉपुलेशन मिलियंस में है, क्रोर्स में है, इट्स नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट डिटेल डाटा, इन डेप्थ डाटा, ठीक है। तो सरफेस डाटा इसमें आता है, बट व्हेन यू विल कंडक्ट ए स्टडी और व्हेन यू विल डू ए सैंपल सर्वे, पॉपुलेशन से एक छोटा सा सैंपल लेकर जब आप स्टडी करेंगे, आप देखेंगे जो डाटा आपको मिलेगा, और इंटेंस डाटा जो है, इन डेप्थ डाटा जो है, आप कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि छोटा सा ग्रुप से आप लेते हैं। देन फर्दर ग्रेटर एक्यूरेसी ऑफ द स्टडी, क्योंकि जब सैंपल हम सिलेक्ट करेंगे, देयर आर सर्टेन मेथड्स, देयर आर सर्टेन सुइटेबल मेथड्स, बाय फॉलोइंग those methods you can select a sample from the population। so इसीलिए इसके एक्यूरेसी के ऊपर भी क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता है if you are conducting a study by using the probability sampling technique, जो कि मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूं। so friends, characteristics of a sample survey, quickly let me to say that use of sampling technique for selecting a sample from the population। एक sampling technique हम इसमें यूज करते हैं, पॉपुलेशन से एक छोटा सा सैंपल, जनसंख्या से एक न्यायदर्श हम चयन करते हैं। देन एक एप्रोप्रिएट टूल हम यूज करते हैं, मे बी क्वेश्चनियर, मे बी ए टेस्ट, मे बी ए रेटिंग स्केल, ओके, और मे बी उनका इंटरव्यू हम करते हैं कि टूल यूज करके हम डाटा कलेक्ट करते हैं। देन स्पेसिफिक डाटा एनालिसिस टेक्निक हम यूज करते हैं, दैट इज एनालिसिस करने के लिए कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक हम यूज करके डाटा को एनालिसिस करते हैं। फर्दर उसे इंटरप्रीट करके हम फाइंडिंग्स तक पहुंचते हैं। एंड नेक्स्ट हम कोशिश करते हैं कि जो फाइंडिंग्स हमारा है, इफ एवरीथिंग इज प्रॉपरली डन, देन वी कैन ऑल्सो जनरलाइज द फाइंडिंग्स, ठीक है। तो सैंपल सर्वे करने का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्टेप वाइज हम प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ लिया हूँ ताकि आप अच्छे से इसे समझ सके कि सैंपल सर्वे जो अब आप करेंगे, आपका जो टॉपिक है उसका नेचर कैसे होगा, किस प्रकार का होगा। एक देखिए, एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स टुवर्ड्स मिड डे मील स्कीम इन द एलिमेंट्री स्कूल्स। देन सेकंड, कजेस ऑफ ड्रॉप आउट्स अमंग डिस्टेंट लर्नर्स एज रिसीव्ड बाय टीचर्स ऑफ इग्नो। देन थर्ड, एटीट्यूड ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स टुवर्ड्स लर्निंग थ्रू MOOCs, massive open online courses। Then teaching competencies of primary school teachers in terms of using media and methods। Then fifth, physical and human resources of elementary schools in educationally backward districts of a state, किसी भी एक स्टेट का। तो ये आप देखिए, इस प्रकार का स्टडी जब आप लेंगे तो हम कहेंगे ये एक सैंपल सर्वे आप करने जा रहे हैं। एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स टुवर्ड्स मिड डे मील स्कीम इन द एलिमेंट्री स्कूल। सो एलिमेंट्री स्कूल में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनका जो पेरेंट्स है, ठीक है, उनके ऊपर एक स्टडी आप करेंगे कि मिड डे मील के ऊपर उनका क्या एटीट्यूड है, ठीक है। पहले एक एरिया को आप स्पेसिफाई करेंगे, उस एरिया में कितने सारे स्टूडेंट्स है उससे आप पहले उसका लिस्ट बनाएंगे, फिर उन्हीं के पेरेंट्स से एक सैंपल लेकर आप डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेकेंड, कॉजेस ऑफ ड्रॉप आउट्स अमंग डिस्टेंस लर्नर्स एज परसीव्ड बाय टीचर्स ऑफ इग्नो। इग्नू में जो टीचर्स है, यदि एक स्टडी आप करेंगे कि डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम में जो ड्रॉप आउट्स है, इसका कजेस क्या, व्हाट आर द कजेस ऑफ इट, सो व्हाट यू कैन डू। तो इग्नू का जो टीचर्स है उनका एक सैंपल आप ले सकते हैं, सैंपल लेकर एक स्टडी कर सकते हैं। देन एटीट्यूड ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स टुवर्ड्स लर्निंग थ्रू MOOCs। सो नाउ डेज यू विल फाइंड दैट massive open online courses, MOOCs is getting popular across the world, okay। in India also you will find in the SWAYAM platform thousands of MOOC courses are there in different disciplines, okay। तो आप देखेंगे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स मिलता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स MOOCs में एनरोल होते हैं और अपना कोर्स जो है, ऑनलाइन कोर्स जो है, वो परस्यू करते हैं।
तो एक स्टडी उसके ऊपर आप कर सकते हैं, टू नो द एटीट्यूड ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स टूवर्ड्स लर्निंग थ्रू मुक्स। जो मुक्स कर रहे हैं उनका एटीट्यूड क्या है, ठीक है। तो मुक्स में एनरोल हुआ, उनको किस प्रकार स्टडीज मिला, ठीक है, मुक्स से क्या वो खुद को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, जो स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज उनको मिलना चाहिए क्या वही मिल जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार एक स्टडी करने के लिए आप क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का एक ग्रुप आप ले सकते हैं। यू कैन सिलेक्ट ए सैंपल फ्रॉम ए ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स दोज आर परसुइंग मूक कोर्सेज, ठीक है, करके एक एटीट्यूड स्टडी आप कर सकते हैं। इस प्रकार और भी 2 एग्जाम्पल मैं यहाँ लिया हूं। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार का स्टडीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर कंडक्टिंग योर डिसर्टेशन, MA एजुकेशन डिसर्टेशन अंडर सैंपल सर्वे। Then further, another important method that comes under the descriptive studies, that's called as the longitudinal study, ठीक है। longitudinal, you see the term that is used, longitudinal मतलब लॉन्ग टर्म, मतलब एक स्टडी को आप लंबे समय तक करेंगे, ओके। यू विल कंटिन्यूअली डू द स्टडी, it may be for 1 decade, it may be for 5 years, it may be for 2 decades. You might have observed in Discovery Channel, in National Geography and other channel also, you will find that the researchers, they are doing research maybe on elephant, maybe on animals, and maybe on any species. They are just consuming their you can say huge time of their life. Many a time you will find that throughout the life they are engaged for conducting a single piece of research, okay. So this is a type of longitudinal study. longitudinal study का मतलब हम कहेंगे कि लंबे समय तक एक प्रॉब्लम कैसे, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके ऊपर आपको स्टडी करना है। थ्रू लॉन्गिट्यूडिनल सर्वेज वन एक्सप्लोर द स्टेटस ऑफ वेरिएबल्स एज इन्वेस्टिगेटेड ऑन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम इन ऑर्डर, ठीक है। जो वेरिएबल है उसका स्टेटस कैसे बदलता है या उसका ट्रेंड कैसे चलता है, ठीक है, एक लंबे समय तक आप देखेंगे, ठीक है। किसी स्टूडेंट्स का अचीवमेंट, एक स्टूडेंट का अचीवमेंट सिर्फ 1 साल में आप जान नहीं पाएंगे, ठीक है। यदि 10 इयर्स तक उसको आप स्टडी करेंगे, क्लास 1 में कैसे था, क्लास 2 में कैसे था, क्लास 3 में, 4 में, 5 में, तो धीरे धीरे आपको एक ट्रेंड पता चलेगा कि इसका डेवलपमेंट, इसका ग्रोथ कैसे होता है, टू अंडरस्टैंड द ग्रोथ, ठीक है। तो एक लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी हम कर सकते हैं। थ्रू सच स्टडीज द चेंजेस इन द स्टेटस ऑफ द वेरिएबल cover variable over a period of time are explored. You can explore means किसी एक प्रॉब्लम का जो चेंजेस आ रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स, 10 साल में क्या चेंजेस आया, 5 इयर्स में क्या चेंजेस आया, ठीक है। एक स्कीम एस्टेब्लिश किया गया, एक स्कीम इंप्लीमेंट किया गया है, ठीक है, मिड डे मील स्कीम इंप्लीमेंट किया गया है। आप जानना चाहते हैं व्हाट इज द एटीट्यूड, व्हाट इज द परसेप्शन एंड एटीट्यूड ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, दोज आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ इट। आप क्या करेंगे, लंबे समय तक जो फ्रेश स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आप पहले एलिमेंट्री स्टूडेंट्स का एक ग्रुप को इस साल पूछे, अगले साल में नया बैच को पूछे, नेक्स्ट साल में नया बैच को पूछे, ऐसे पूछ के एक ट्रेंड आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि सही से ये मददगार है या नहीं है, ठीक है। सो इट ऑल्सो टू कंपेयर विथ क्रॉस सेक्शनल स्टडी वेयर past data are collected by the respondent at one point of time, but in the longitudinal study it deals with gathering actual evidences at different points of time in order, ठीक है। तो ये भी एक है क्रॉस सेक्शनल स्टडी के साथ, इसे भी हम कंपेयर कर सकते हैं आगे जाकर। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी मैंने आपको बताया कि लंबे समय तक जब एक स्टडी हम करते हैं। सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सर्वे। वन इज कॉल्ड एज द ट्रेंड स्टडीज, सेकेंड इज पैनल स्टडीज एंड थर्ड इज कोहोर्ट स्टडीज। चलिए हम समझने के लिए कोशिश करते हैं कि ट्रेंड स्टडीज क्या है, पैनल स्टडीज क्या है और कोहोर्ट स्टडीज क्या है। आप देखिए ट्रेंड स्टडीज जो मैंने आपको कहा, आप देखिए फॉर इंस्टेंस इन द केस ऑफ द impact study of the midday meal scheme at the elementary stage, the researcher may collect evidences from a fresh batch of elementary school students on an annual basis for few years. You try to understand, you have to understand the trend. अब देखिए मिड डे मील स्कीम ये इम्प्लीमेंट हुआ है, एलिमेंट्री लेवल स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट्स ले रहे हैं, ठीक है, मध्याह्न भोजन उनको मिलता है स्कूल में एवरी डे। आप क्या करेंगे, अंडर दिस लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी, अंडर दिस स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ ट्रेंड स्टडीज,
तो you can select a group of students, elementary students, एक फ्रेश ग्रुप जो 2000, लेट एज एन एग्जांपल लेट 2010 में जो एडमिशन लिए थे, ठीक है, तो उनका जो है उनके ऊपर पहले हम एक स्टडी करेंगे कि टू नो हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर देम, वो क्या कहते हैं इसके ऊपर। सेकेंड, फिर सेकेंड बैच स्टूडेंट्स जब 2011 में एडमिशन लेंगे और लिए थे, उनका स्टडी भी आपने किया। फिर एक फ्रेश बैच 2012 में जो लिए, उनका स्टडी भी आपने किया। ऐसे करके 10 इयर्स तक आपने डाटा लिया डिफरेंट ग्रुप से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि इसका ट्रेंड क्या है, ये किस रूप में डिफरेंट ग्रुप को डिफरेंट टाइम में कैसे ये फायदा दिया, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो conduct a type of trend studies that's come under the longitudinal study. Further हम कहेंगे panel studies. Panel studies क्या है? Try to understand. In such studies the same group of sample responded is studied over a period of time. यहाँ हम क्या करेंगे, हम सैंपल यहाँ चेंज नहीं करेंगे। पहले क्या करते थे, एवरी फ्रेश ग्रुप से एक एक छोटा छोटा सैंपल लेकर हम स्टडी कर रहे थे। पैनल स्टडीज में यू हैव टू सिलेक्ट वन ग्रुप, ठीक है, एक सैंपल आप लेंगे। जो सैंपल आपने लिया 2010 में, यदि आप लिया 2010 में उन्हीं के ऊपर आपने स्टडी किया, 2011 में उन्हीं के ऊपर स्टडी किया, 12 में भी उन्हीं के ऊपर किया, 13, 14, 15। जैसे कि मैंने आपको कहा था 2010 में अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। 2011 जब वो क्लास 1 में थे, फिर क्लास 2 को गए, फिर क्लास 3 को गए, 4 को गए, ऐसे टिल द कंप्लीशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन। आप कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, कंटिन्यूअसली फॉर 10 इयर्स उनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ए ग्रुप ऑफ लर्नर्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी, यू आर डूइंग इट फॉर 10 इयर्स। आप कहते हैं कभी कभी बीइंग ए टीचर या टीचर कहते हुए आप सुने होंगे कि ये जो ग्रुप स्टूडेंट्स है, या आपका जो आप डिटोरिएट हो रहा है, आपका अचीवमेंट लेवल, जो आपका परफॉर्मेंस और आपका अंडरस्टैंडिंग, और ये कहते हैं आप कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं। सो हाउ इट इज पॉसिबल अनलेस टू गेट द डाटा ऑफ एवरी ईयर। सो दैट्स व्हाई a panel studies you can also conduct, taking a small group and you take data every year on that group. You cannot change here the sample, the same sample will retain, okay, and you will get data of the same sample from different at different time, ठीक है। पर इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है, यदि कोई स्कूल छोड़ के चला गया, जितने डाटा आप पहले 2010 में लिए थे, नॉट नेसेसरली कि उतने डाटा अवेलेबल होगा 2011 में। एवरी स्टडी इज हैविंग इट्स वन लिमिटेशन, और पैनल स्टडीज का ये एक लिमिटेशन है। देन थर्ड जो स्टडी है वी कॉल दैट इज द कोहोर्ट स्टडीज। कोहोर्ट स्टडीज, इन द कोहोर्ट स्टडी मेथड ए स्पेसिफिक पॉपुलेशन इज टेकन फॉर स्टडी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन लिया जाता है डिफरेंट टाइम में, जस्ट लाइक डिफरेंट सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए स्पेसिफिक पॉपुलेशन ओवर different phases of data collection corresponding to different phases or stages of development of the event। चलिए समझने के लिए कोशिश करते हैं। मुझे बताइए, यदि आपके स्कूल में या एक नया स्कीम इंप्लीमेंट हुआ, जस्ट लाइक लेट मी टू गिव एग्जांपल दैट टीचर्स को कहा गया, स्कूल को कहा गया कि आपको मूक्स डेवलप करना है और आपको मूक्स यूज करके स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट, आप देखिए कुछ चीजें बिफोर इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस में होता है, कुछ डेवलपमेंट ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में होता है, और कुछ चीजें आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में होता है। कोहोर्ट स्टडीज में आप क्या करेंगे, लेट ए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट ऑनलाइन एजुकेशन थ्रू मूक्स फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स एट डिफरेंट सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। सो टीचर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए वो मूक्स करने के लिए एक इम्प्लीमेंट किया, एक स्कीम इम्प्लीमेंट किया। तो यू वांट टू नो द एटीट्यूड ऑफ द टीचर्स, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द मूक्स, टीचर्स का एटीट्यूड कैसे है मूक्स के प्रति, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के प्रति। एक ग्रुप आप लेंगे टीचर का, ठीक है, उनका एटीट्यूड आप जानेंगे बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, तब तक इम्प्लीमेंटेशन मूक्स नहीं हुआ है। फर्दर जैसे वो इम्प्लीमेंट हो गया, कोर्स चल रहा है, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ टीचर्स को आप लेंगे, अनदर ग्रुप ऑफ टीचर्स टू नो देयर एटीट्यूड,
और उसको उसके बाद जब इम्प्लीमेंट हो गया 5 साल, आप उसके बाद टाइम ले ले, 2-3 ईयर्स 5 ईयर्स आप टाइम ले ले, फिर टीचर्स का एटीट्यूड आप देखें, आप देखेंगे कि इनका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए एक अटेम्प्ट किया गया था, क्या सही से फुलफिल हुआ है? टीचर्स के एटीट्यूड प्री इम्प्लीमेंटेशन, ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन, देन फ्यू ईयर्स आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, क्या कुछ वेरिएशंस आ रहा है? टीचर का जो मनोभाव है, उनका जो एटीट्यूड है, उनमें से क्या कुछ परिवर्तन है? तो इस प्रकार एक कोहोर्ट स्टडीज आप कर सकते हैं। पर यह भी एक लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी, क्योंकि डिफरेंट फेजेस में आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड फ्यू ईयर्स आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। हर स्टडीज का अपना इंपॉर्टेंस है। सो बीइंग ए रिसर्चर आपको देखना पड़ेगा जो स्टडी आप लिए हैं वो स्टडी सही से आपके लिए यूजफुल जो मेथड है, सही से अप्रोप्रिएट स्टडी है कि नहीं, आपके रिसर्च के लिए आपको देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। देन फर्दर विल डिस्कस अबाउट द क्रॉस सेक्शनल सर्वे, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल सर्वे ये कहता है कि ये लॉन्गिट्यूडिनल नहीं है, डाटा कलेक्शन एक ही समय में होगा बट डिफरेंट ग्रुप से, ओके, सोसाइटी का डिफरेंट सेक्शन से आप डाटा लेंगे, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप का सब्जेक्ट रहेगा, डिफरेंट स्टेजेस का सब्जेक्ट रहेगा, बट सिमिलर वे में साइमल्टेनियसली आप पैरेलली डाटा कलेक्ट आप करेंगे, ठीक है। सो क्रॉस सेक्शनल इज ए काइंड ऑफ sample survey where standardized information is gathered from a sample drawn from a cross section of a predetermined population at one point of time. At one point of time मतलब एक ही समय में डिफरेंट पॉपुलेशन से जो डाटा आप लिए हैं वो आपको स्टडी करके उसका स्टेटस आपको अध्ययन करना है। द सैंपल रेस्पोंडेड मोस्ट रिप्रेजेंट डिफरेंट डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन का डिफरेंट सेगमेंट में भी स्टूडेंट, में भी टीचर्स, में भी पेरेंट्स, में भी कम्युनिटी मेंबर्स, ठीक है, में भी लोकल गवर्नमेंट, डिफरेंट सेगमेंट पॉपुलेशन का आपको लेना पड़ेगा। और अब स्कूल एजुकेशन का हम देख ले, लाइक एलिमेंट्री स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, सीनियर सेकेंडरी स्टेज, ठीक है, ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है। तो ये से डिफरेंट सेगमेंट से आपको डाटा लेना पड़ेगा, बट पैरेलली डाटा कलेक्ट आपको करना पड़ेगा सिंगल at the same time. Then the methods that you can use for selecting sample, that is random sample ले सकते हैं, stratified ले सकते हैं, और cluster sample ले सकते हैं, क्योंकि cluster means group, stratified means in different strata, that is also in group, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप से आपको डाटा लेना पड़ेगा, एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी। आगे कुछ एग्जाम्पल देकर हम इसे समझने के लिए कोशिश करेंगे। ये 3 चीजें आप देखिए इंपॉर्टेंट है। द बेसिक feature of cross-sectional survey is associated with varieties of respondents covering different stages or status in the study. So varieties of respondents, respondent अलग-अलग होंगे but covering different stages or status in the study, ठीक है, और different stages को represent करेंगे। Then another main feature of cross-sectional study is that the information is collected at one point of time. मैंने आपको कहा it is not like longitudinal study 10 years तक हमने wait करेंगे। One point of time refers to single slot of data collection stretching over a few days or months or more. Within few months, within few days, you can collect your data. चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर हम इसे समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए 2 types of cross-sectional surveys that you can conduct. One is called as the description of status of single variable. एक single variable लेकर आप कर सकते हैं। Then exploring relationship between 2 or more variable. चलिए ये सिंगल वेरिएबल और मोर वेरिएबल को लेकर आप कैसे करेंगे। सिंगल वेरिएबल में आप देखिए यहाँ वेरिएबल 1, हम यहाँ वेरिएबल लिए हैं ऑनलाइन लर्निंग थ्रू मूक्स, ठीक है, इसका इफेक्ट हमने स्टडी करेंगे। स्टेजेस 2 स्टेजेस में होगा, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी। मैंने आपको कहा था 2 स्टेजेस। और डाटा क्रॉस सेक्शन पॉपुलेशन क्या होगा, आपका सेक्शन हो गया सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, 2 स्टेजेस है, और पॉपुलेशन हो जाएगा स्टूडेंट, टीचर्स, पेरेंट्स, ठीक है, ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टेजेस। तो आप देखेंगे ये जो मूक्स है, मूक्स के बारे में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के स्टेजेस में आपने करेंगे, स्टूडेंट को सब्जेक्ट करेंगे, टीचर्स को सब्जेक्ट करेंगे, पेरेंट्स को भी सब्जेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड सिचुएशन टाइम कंडक्ट स्टडी एट द सेम टाइम। टूल्स यूज, आप क्वेश्चनर यूज कर सकते हैं या इंटरव्यू कर सकते हैं, स्केल कर सकते हो, नो देयर एटीट्यूड, कुछ स्केल भी हमने यूज कर सकते हैं, ठीक है, इनका इंटरव्यू हमें ले सकते हैं। डाटा एनालिसिस कैन बी डन
डिस्क्रिप्टिवली बाय यूजिंग बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड। ठीक है, क्वेश्चनियर है तो क्वांटिटेटिव डाटा मिलेगा, स्केल है तो क्वांटिटेटिव डाटा मिलेगा, इंटरव्यू है तो आपको क्वालिटेटिव डाटा मिलेगा। फिर डाटा एनालिसिस आप कर सकते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा डिसीजन और रिजल्ट उसे आप कंपेयर कर सकते हैं और क्रॉस सेक्शन पॉपुलेशन एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम सेकेंडरी क्या कहते हैं, सीनियर सेकेंडरी क्या कहते हैं, टीचर क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, पेरेंट्स क्या कहते हैं। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। नेक्स्ट मल्टी वेरिएबल का एक एग्जाम्पल हम देते हैं। यहाँ आप देखिए वेरिएबल 2 हम लिए, अचीवमेंट लिए और उसके साथ साथ लर्निंग हैबिट्स लिए। अचीवमेंट इज वन वेरिएबल एंड लर्निंग हैबिट्स आर द सेकेंड वेरिएबल एंड स्टेजेस सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टेजेस, 2 स्टेजेस हमने लिया, सेकेंडरी स्टेजेस एंड सीनियर सेकेंडरी स्टेजेस। क्रॉस सेक्शन पॉपुलेशन स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, 2 सेक्शन हमने ले लिया, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी, और पॉपुलेशन ले लिया स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी एंड स्टूडेंट्स ऑफ सीनियर सेकेंडरी। यहाँ हम देखेंगे सिचुएशन और टाइम, कंडक्ट द स्टडी एट द सेम टाइम, टूल्स यूज, टेस्ट एंड स्केल यहाँ हम यूज करेंगे। ठीक है, डाटा एनालिसिस हम करेंगे। हम यहाँ देखेंगे डाटा एनालिसिस कैन बी डन बाय यूजिंग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स अचीवमेंट एंड लर्निंग हैबिट्स अमंग द क्रॉस सेक्शन पॉपुलेशन। ये जो सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी का स्टूडेंट है, इनका एक ही समय में अचीवमेंट के साथ लर्निंग हैबिट्स को हमने कोरिलेट करेंगे। ठीक है, सेकेंडरी स्टेज में करेंगे और सीनियर सेकेंडरी स्टेज में करेंगे। और यहाँ हम वेट नहीं करेंगे इस साल में क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, इस प्रकार का ट्रेंड हमें एस्टैब्लिश नहीं करना है। सो इन क्रॉस सेक्शनल स्टडी आप देखेंगे कि एक सिंगल टाइम में मतलब एट द सेम टाइम हम डिफरेंट सेक्शन, सोसाइटी का डिफरेंट सेक्शन और पॉपुलेशन का डिफरेंट सेक्शन को लेकर हम स्टडी कैसे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि दोनों को मैंने डिफरेंस इसका एस्टेब्लिश करूं, क्रॉस सेक्शनल कंडक्टेड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेयर इज लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी इज कंडक्टेड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, डाटा कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन इन क्रॉस सेक्शनल, बट इन लॉन्गिट्यूडिनल डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। Then in cross sectional it takes less time to conduct a study, but longitudinal it takes lots of time, it may be a decade. Then in cross sectional it is complicated sampling techniques are required because different sections से आपको sampling करना पड़ेगा, maybe clustered sampling, maybe a type of you can say stratified sampling आपको करना पड़ेगा, but longitudinal में sampling technique जो है बहुत easy होता है। Then relevance of the problem cross sectional में retained है, but longitudinal में relevance of the problem lost because 10 साल के बाद उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। हो सकता है 10 साल पहले जो सिचुएशन था 10 साल के बाद बहुत कुछ चेंज हो गया होगा और जो फाइंडिंग्स आपके स्टडी में मिलेगा शायद वो इतने कामयाबी फाइंडिंग ना हो। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन बदल चुका है। सो दैट्स वाई तो रिलेवेंस जो है प्रॉब्लम का ये खत्म हो जाता है लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी में। और क्रॉस सेक्शनल स्टडी में पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग बोथ टाइप्स ऑफ डाटा, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, बट लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी में यहाँ भी बोथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में हम इंटरव्यू कर सकते हैं, दोनों में क्वेश्चनियर यूज कर सकते हैं, दोनों में स्केल में भी यूज कर सकते हैं। और क्रॉस सेक्शनल स्टडी को जनरलाइज हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्टडी एक थोड़ा सीमित होता है, बट लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी को हम जनरल कर पाएंगे, एक लंबे समय तक हम ऑब्जर्व करके स्टडी करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द सर्टेन डिफरेंस बिटवीन ए क्रॉस सेक्शनल एंड ए लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। आगे चलते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट द डॉक्यूमेंट्री सर्वे। फ्रेंड्स, आई विल टेक अनदर 10-15 मिनट्स एंड आई विल कंप्लीट दिस सेशन। और 3 मेथड्स मुझे कहना है, तो मैं चाहूँगा आप 10-15 मिनट में आप लोग इसे देखें और उसके बाद हम इसे कंप्लीट करेंगे इस सेशन को। डॉक्यूमेंट्री सर्वे, many a time you will find that you want to conduct a study on the available documents। जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है उसके ऊपर एक स्टडी आप करना चाहते हैं। ठीक है, लेट यू वांट टू डेवलप ए करिकुलम फॉर योर सेल्फ, बीइंग ए टीचर, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, बीइंग ए फैकल्टी, आप एक नया करिकुलम डेवलप करना चाहते हैं, चाहे ये टीचर्स के ऊपर हो, स्टूडेंट्स के ऊपर हो, किसी एक नया प्रोग्राम का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि उसी प्रोग्राम रिलेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड जहां जहां सब इस प्रकार का कोर्स चलता है उनका करिकुलम कैसे है। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है
तो वो डॉक्यूमेंट्स आप उसका एक सर्वे करेंगे, यू विल विजिट दिस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, उसे आप पढ़ेंगे, समझने के लिए कोशिश करेंगे, करके फिर आप एक ब्यूटीफुल करिकुलम डेवलप करेंगे। सो डॉक्यूमेंट्री स्टडी क्या है? द अवेलेबल लिटरेचर और द अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स जो है, जो कि सेकेंडरी इन नेचर, ठीक है, किसी फॉर्म में आपको प्राप्त हो जाता है। आपको यहाँ कुछ डाटा कलेक्शन प्राइमरी सोर्स से नहीं करना है, किसी को इंटरव्यू नहीं करना, किसी को क्वेश्चनियर भी नहीं देना है, ठीक है। जस्ट लाइक you can get certain things from the books, from official records, from research reports, review articles, research papers, information bulletins, handouts, prospectus, annual reports, periodicals, progress report, experience of individuals, news items. So ये जो सब documents है, by using these documents you can use these documents and also conduct a study. Just like for instance, the researcher is interested in comparing the existing status of teacher education program in SAARC countries. SAARC countries में टीचर एजुकेशन को आपको कंपेयर करना है, ठीक है। आप एज ए रिसर्चर यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? SAARC कंट्रीज में, जितने सारे कंट्रीज में टीचर एजुकेशन का जो प्रोग्राम है, जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, उसे आप कलेक्ट करेंगे, करके उसे आप पढ़ेंगे, पढ़ के एक एक करके उसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। सेकेंड, फॉर इंस्टांस, to know the transaction strategy of teacher education curriculum across the world or South Asian countries, ठीक है। टीचर एजुकेशन करिकुलम across the world ये कैसे है, और द साउथ एशियन कंट्रीज, इनका ट्रांजैक्शन स्ट्रैटेजी क्या अडॉप्ट करते हैं, टीचर्स को जो करिकुलम डेवलप किया उसे पढ़ाते कैसे हैं, कौन सा मेथड, कौन सा टेक्निक, कौन सा स्ट्रैटेजी जो यूज करते हैं। तो कैसे आपको पता चलेगा? बाय डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो by using only documents you can also conduct a type of study. चलिए, डॉक्यूमेंट्री स्टडी में यदि टीचर एजुकेशन को आप एक टॉपिक बनाए फॉर कंडक्टिंग योर स्टडी, तो क्या क्या करेंगे? करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ये एक पैरामीटर आपका रहेगा। ट्रांजैक्शन ऑफ मेथोडोलॉजी, क्या क्या मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं, उनका इंटेक कैसे है। रेगुलेटरी बॉडी, जैसे कि हमारा एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो कि टीचर एजुकेशन को रेगुलेट करता है, दिस एनसीटी इज द रेगुलेटरी बॉडी। तो इन अदर कंट्रीज हु आर द रेगुलेटरी बॉडी, ये भी आप जान सकते हैं। देन एंट्री लेवल, स्टूडेंट्स को जो एडमिशन मिलता है इन इंडिया, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स बीएड में एडमिशन लेते हैं, 12th स्टूडेंट डीएलएड में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, और जो बीएड कर लिया वो एमएड में एडमिशन लेते हैं। टीचर एजुकेशन का एग्जाम्पल यदि मैं दूं, ठीक है, तो उसी प्रकार अलग प्रोग्राम का एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। इसका एंट्री लेवल क्या है। देन फर्दर इवैल्यूएशन एंड सर्टिफिकेशन, टीचर एजुकेशन या अदर प्रोग्राम को इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है, उनका प्रैक्टिकल कंपोनेंट क्या है, उनका थ्योरेटिकल कंपोनेंट क्या है, उसका हैंड्स ऑन एक्टिविटीज सब क्या क्या है, क्या क्या रिपोर्ट सबमिट करते हैं, और उसका सर्टिफिकेशन कैसे होता है। सो डॉक्यूमेंटरी स्टडी करके ये सब चीजें एक अच्छे से मतलब एक रिपोर्ट हमने बना सकते हैं बाय कंडक्टिंग ए टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्री सर्वे रिसर्च। मैं आपको कहूंगा, अभी ये जो चल रहा है, पैंडेमिक टाइम चल रहा है, यू कैन ऑल्सो कंडक्ट ए टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्री सर्वे, नो वन विल डिनाई यू टू डू ए डॉक्यूमेंट्री सर्वे, ठीक है। घर में बैठ के डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके इंटरनेट से यू कैन ऑल्सो कंडक्ट ए स्टडी बाय टेकिंग द डाटा अवेलेबल इन डिफरेंट सेकेंडरी सोर्सेस। तो अभी ये दोनों को हमने कंपेयर किया। वेरी क्विकली मैं कुछ पॉइंट बता दूंगा, डॉक्यूमेंट्री सर्वे एंड हिस्टोरिकल सर्वे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री सर्वे में आप देखेंगे सेकेंडरी डाटा इसमें यूज होता है, हिस्टोरिकल सर्वे में भी सेकेंडरी डाटा यूज होता है, ठीक है। एनालिसिस प्रोसीजर दोनों में मोर और लेस सेम, कंटेंट एनालिसिस दोनों में किया जाता है, ठीक है। बट एक्सटर्नल वैलिडिटी फॉर ऑथेंटिकेटिंग द सोर्सेस, ये दोनों में होता है, एक्सटर्नल वैलिडिटी भी होता है और इंटरनल वैलिडिटी भी होता है, ठीक है। मतलब जो डाटा आपको मिला, जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिला, वो डॉक्यूमेंट जो है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। उसका इंटरनल वैलिडिटी हम देखते हैं, किस टाइम में वो पब्लिश हुआ, सही से वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि नहीं। यदि किसी अदर कंट्रीज का लिया, उसी कंट्रीज का एजुकेशन डिपार्टमेंट उसे पब्लिश किया है या नहीं, कौन से वेबसाइट्स में से मिला, वो वेबसाइट से ऑथेंटिकेट वेबसाइट है कि नहीं। सो उसका इंटरनल वैलिडिटी हम देखेंगे। एक्सटर्नल वैलिडिटी देखेंगे, वो डॉक्यूमेंट के बारे में कंटेम्पोररी और कहा जिक्र किया गया है क्या, किसी आर्टिकल में हो, किसी पब्लिकेशन में हो, उसी प्रकार और कुछ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है क्या जो उसके बारे में बताते, उसका रिलायबिलिटी के बारे में बताता है, ठीक है। सो एक्सटर्नल एंड इंटरनल वैलिडिटी भी हमें
देखना पड़ेगा, ठीक है। पर डॉक्यूमेंट्री सर्वे जो हम करते हैं ये एक प्रेजेंट इवेंट को फॉर्म करने के लिए हम करते हैं, पर हिस्टोरिकल सर्वे जो हम करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक पास्ट इंसिडेंट को सर्वे करके हम देखते हैं पहले क्या occurrences था, कैसे हुआ था, और वर्तमान समय में जो चीज करना हम चाहते हैं उसे कैसे हम सेव दें। सो ए डॉक्यूमेंटरी सर्वे इज डिफरेंट फ्रॉम ए हिस्टोरिकल सर्वे इन सच वेज। देन फर्दर पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंट्री सर्वे, मैंने आपको बता दूं, टू डिस्क्राइब द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर and functions of educational system or condition that exist in the educational field, to discover the relative importance of certain problem and identifying the future trends, future trend identify करने के लिए हम करेंगे, to analyze curriculum of different stages of education, curriculum analysis करने के लिए भी documentary study हम कर सकते हैं, and to analyze and review the study materials and evaluation item, जो study material है उसे रिव्यू करने के लिए भी हम कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इसका लिमिटेशन भी है, क्योंकि इंटरनल वैलिडिटी एक्सटर्नल वैलिडिटी एस्टैब्लिश करना किसी डॉक्यूमेंट का इट्स वेरी डिफिकल्ट, इसे ऑथेंटिकेट करना डिफिकल्ट है, और स्टडी इज कंडक्टेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द सेकेंडरी डाटा। हियर देयर इज नो स्कोप टू कलेक्ट डाटा बाय यूजिंग द प्राइमरी सोर्सेस, तो ये सबसे एक बड़ा लिमिटेशन है। देन विल डिस्कस अबाउट दिस कंपैरेटिव सर्वे, ठीक है, जो सर्वे मेथड का हमने बात कर रहे थे, कंपैरेटिव सर्वे। इन कंपैरेटिव सर्वे, यू सी, इन कंपैरेटिव सर्वे द पर्पस इज टू कंपेयर द स्टेटस ऑफ टू और मोर नंबर ऑफ वेरिएबल्स। लेट वी हैव टू वेरिएबल्स, अचीवमेंट एंड इंटेलिजेंस। हम दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं, ठीक है। अचीवमेंट और इंटेलिजेंस किस रूप में एक दूसरे के साथ संबंधित है, ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो डू ए कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है। एग्जाम्पल, कंपेयर द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ टू ग्रुप्स। दो ग्रुप दिया गया है, लेट बॉयज एंड गर्ल्स, रूरल एंड अर्बन, हाई सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, ठीक है। सिंगल पेरेंट चाइल्ड, सिंगल पेरेंट चाइल्ड एंड यू कैन से पेरेंट्स आर हैविंग डबल चिल्ड्रन, ठीक है। सो हियर यू कैन ऑल्सो कंपेयर देयर अचीवमेंट और देयर अदर एट्रीब्यूट्स एंड अदर वेरिएबल्स, ये भी आप कर सकते हैं। Compare the attitude of teachers towards their principal in government and private schools. Teachers के attitude of teachers towards principal in government and private school. Government school principal का attitude and private school principal का attitude भी comparative study कर सकते हैं। Compare two institutions in terms of infrastructure. दोनों institution का infrastructure, curriculum, transaction strategy, students achievement, financial status, ये भी कर सकते हैं। So mostly in education we can also conduct a type of comparative study. चलिए कुछ और एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ कंपैरेटिव स्टडी हम कर सकते हैं। वन इज कंपैरिजन पॉइंट्स, देन अदर इज एजम्पशन ऑफ सिमिलरिटीज, देन क्राइटेरिया ऑफ कंपैरिजन। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कंपैरिजन पॉइंट्स क्या है, एजम्पशन ऑफ सिमिलरिटीज क्या है, देन क्राइटेरिया ऑफ कंपैरिजन क्या है। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ कंसर्न इन कंपैरेटिव स्टडी। चलिए, here you see comparison points. Many a time you will find that किसको आप कंपेयर करेंगे, you have to compare the most important thing and where to get that important things. So friends, when you will go through the review of related literature, जो studies पहले हो चुका है, when you will analyze those review of related literature, आपको मिल जाएगा कि what are the important points that should be compared. Okay, let the leadership behavior of the principals in government and private schools. So leadership behavior एक पॉइंट है जो कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल प्रिंसिपल में आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर आप पढ़ेंगे, वहीं से कुछ एमर्जिंग पॉइंट और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल जाएगा जिसके ऊपर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं सब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये कंपैरेटिव पॉइंट आपको रिव्यूज से मिलेगा। देन एजम्पशन ऑफ सिमिलरिटीज। So many a time the researcher must be serious about the comparability of situations under investigation. तो जो सिचुएशन आप ले रहे हैं एक सिमिलरिटीज आपको देखना पड़ेगा। आप देखिए कौन सा दो चीज को आप सिमिलर करेंगे, उसी दो चीज को आप सिमिलर करेंगे जहां एक ही सिस्टम यूज होता है। मैं कहूंगा लेट अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स किस प्रकार का स्कूल्स का आप लेंगे, आप सिमिलर, जैसे कि मैं कहूंगा ओडीएल एंड फेस टू फेस, क्योंकि ओडीएल का प्रैक्टिसेस एंड फेस टू फेस का प्रैक्टिसेस डिफरेंट है।
इसका स्ट्रैटेजिस डिफरेंस है, इसका टेक्निक्स डिफरेंस है, मीडिया यूज डिफरेंट है। तो इस प्रकार स्टडीज में विदाउट सिमिलैरिटीज, बिना देख के आप स्टडी नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द डिफरेंट सिमिलैरिटीज आर देयर between the group. Just like for comparing teacher training program of two types of teacher education institutions, you will have to proceed with establishing commonness of the student population. स्टूडेंट पॉपुलेशन, उनका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, फैकल्टी अपॉइंटमेंट का नॉर्म क्या है, ठीक है, उसका करिकुलम क्या है। जब दोनों बराबर की होता है, देन आफ्टर यू कैन जस्ट स्टडी द परफॉर्मेंस आइदर द इंस्टीट्यूशंस और द स्टूडेंट्स। फर्दर, कंपेरेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेटिंग, करिकुलर रिक्वायरमेंट्स, टाइम शेड्यूल, वर्किंग आवर्स एक्सेट्रा। ये भी तो जो करिकुलम प्रैक्टिस करते हैं, टाइम शेड्यूल क्या है, ठीक है, और वर्किंग आवर क्या है, इंस्टीट्यूशनल सेटिंग क्या है, ठीक है, टीचर्स अपॉइंटमेंट का जो डिफरेंट जैसे कि पेडागोजी कोर्स हो गया, आपका थ्योरी कोर्स हो गया, आप देखेंगे क्या बोथ द इंस्टीट्यूट एक सिमिलर प्रोसेस अडॉप्ट किया है, ठीक है, सिमिलर सिस्टम अडॉप्ट किया है। यदि नहीं किया है तो फिर मतलब उसे कंपेयर करने में कुछ ज्यादा कुछ आपको नहीं मिलेगा। जब सिमिलर प्रैक्टिसेस होता है वहां आप कंपेयर कर सकते हैं। सो जो क्राइटेरिया है, कंपैरिजन का डिफरेंट क्राइटेरिया है, हम कह सकते हैं फॉर कंपेयरिंग टू स्कूल्स द फॉलोइंग criteria can be used. Criteria of comparison, just like admission criteria, teachers appointment criteria, achievement level of the students, then facilities available in the school, maybe infrastructure, human resources in colleges, in other institutions also, curriculum and pedagogic practices in the schools, what curriculum the schools uses, and what pedagogy, the teaching learning methodology and techniques the teachers used to teach different subjects, ठीक है, ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है फॉर कंपैरिजन। देन फी स्ट्रक्चर ऑफ द स्टूडेंट्स का फी स्ट्रक्चर। सो दैट्स व्हाई मेनी अ टाइम गवर्नमेंट स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल आप देखेंगे द सिस्टम इज डिफरेंट, ठीक है। तो वहाँ गवर्नमेंट स्कूल के बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हैं, बिकॉज सिमिलर टाइप्स ऑफ आपको मतलब जो ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है, बट एट द सेम टाइम ये सभी क्राइटेरिया को लेकर आप एक स्टडी कर सकते हैं, स्पेशली कंपैरेटिव स्टडी। देन फर्दर इवैल्यूएशन स्टडी, हम पहुंच रहे हैं हमारा लास्ट टेस्ट तक, अनदर 2-3 स्लाइड्स विल कंप्लीट इट। इवैल्यूएशन स्टडी, मेनी अ टाइम वी वांट टू इवैल्यूएट द थिंग्स व्हिच हैज ऑलरेडी बीन डन, जस्ट लाइक ए स्कीम। लेट मी टू गिव द एग्जांपल ऑफ मिड डे मील स्कीम, ओके, और लेट मी टू गिव द एग्जांपल ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट। Further, let me to give the example of National Education Policy 2020. ये National Education Policy 2020, this has been notified in July 2020, ठीक है। Now it is in the process of implementation. ये implement होगा, implement होने के 10 साल के बाद या 5 साल के बाद एक evaluative study हम कर सकते हैं कि ये जो NEP 2020 अंतर्गत different scheme आप देखेंगे in future many schemes will come forward relating to education, maybe school education, maybe higher education, maybe teacher education, ठीक है। वो स्कीम फंक्शन कैसे करता है, 2-3 साल हम वेट करेंगे, वेट करके वो स्कीम, हाउ द स्कीम इज functioning at the field, how it got implemented, whether the beneficiaries are really getting the benefit of it, उसका एक इवैल्यूएशन स्टडी हम कर सकते हैं, कि मूल्यांकन अध्ययन हम कर सकते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट ये इंप्लीमेंट हो चुका है 2010 से 11 इयर्स हो गया है। तो आज के दिन में एक इवैल्यूएशन स्टडी हम कर सकते हैं। छोटा सा एक स्टेट का आप ले लीजिए या एक डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, एन इवैल्यूएटिव स्टडी ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ XYZ, जो भी आप ले लीजिए, इस प्रकार का एक स्टडी आप कर सकते हैं, ठीक है। या किसी भी एजुकेशन स्कीम, मैंने आपको कहा मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम के ऊपर एक छोटा सा स्टडी भी आप कर सकते हैं मिड डे मील स्कीम के ऊपर, ठीक है। मिड डे मील स्कीम किसी एक डिस्ट्रिक्ट में कैसे इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है, स्टूडेंट को, टीचर्स को, पेरेंट्स को सब्जेक्ट बनाकर आप कर सकते हैं। मतलब द स्कीम दैट हैज ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड, आप एक स्टडी करके जान सकते हैं कि वो स्टडी सही ढंग से इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। जो प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए वो प्रोडक्ट सही से मिला है या नहीं मिला। एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिंग एन इवैल्यूएटिव स्टडी, जो फाइंडिंग्स आपको मिला, जो सजेशंस कमेंट्स आपको मिला, फर्दर
वो स्कीम को और बेहतर करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए और डेवलप करने के लिए आपको फीडबैक मिल जाता है. सो दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ फीडबैक स्टडी. और लेट मी टू से प्रोग्राम वाइज भी ये हम कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो कंडक्ट ए टाइप ऑफ इवैल्यूएशन स्टडी ऑन एनी एकेडमिक प्रोग्राम जस्ट लाइक एन इवैल्यूएटिव स्टडी ऑफ बीएड प्रोग्राम ऑफ एन इंस्टीट्यूशन. किसी एक इंस्टीट्यूट बीएड प्रोग्राम लॉन्च किया है या एमए एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है या नर्सिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, ठीक है, लॉ का किसी एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च किया है, एक इवैल्यूएटिव स्टडी आप करना चाहते हैं कि वो प्रोग्राम कैसे, कितने स्टूडेंट लाभान्वित हुए हैं, प्रोडक्ट उसका क्या है, अलुमिनाई उसका क्या है, इस सभी के ऊपर एक स्टडी आप कर सकते हैं. दैट्स कॉल्ड एज द इवैल्यूएशन स्टडी. आगे कुछ एग्जांपल लेकर हम समझने के लिए कोशिश करते हैं. इसमें आप देखिए एन इवैल्यूएशन ऑफ मिड डे मील स्कीम इन द स्टेट ऑफ ओडिशा. ठीक है, यू कैन डू ए टाइप ऑफ इवैल्यूएशन स्टडी. इवैल्यूएशन ऑफ एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम in the Bihar district, in the Bastar district of Chhattisgarh, an evaluative study of Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya, an evaluative study of Indira Gandhi National Open University, an evaluative study of Banaras Hindu University. आप एक यूनिवर्सिटी का इवैल्यूएटिव स्टडी कर सकते हैं, कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, क्या क्या काम किया, कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनका अलुमिनाई क्या क्या बेहतर काम किया, इसके ऊपर एक स्टडी आप कर सकते हैं. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी इसका पार्ट है. An evaluative study of MA education program offered by IGNOR, any program offered by any institute. An evaluative study of Arpit program through MOOCs offered by SWAYAM. जो स्वयं प्लेटफॉर्म में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का स्वयं प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन कोर्सेस देता है वहाँ अर्पित है. एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग. ठीक है, अर्पित प्रोग्राम है, रिफ्रेशर प्रोग्राम है. किसी एक रिफ्रेशर प्रोग्राम लेकर उसका एक इवैल्यूएशन स्टडी आप कर सकते हैं कि वो प्रोग्राम कैसे डेवलप हुआ, उसका स्टार्टिंग फ्रॉम द कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम टूवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ऑफ दैट प्रोग्राम. और जो लर्नर्स उसमें पास आउट हुए हैं उनको आप ग्रुप बनाकर उनसे डाटा कलेक्ट करके आप कर सकते हैं. सो दीज आर द सर्टेन जनरल थीम्स यू कैन कंडक्ट ए टाइप ऑफ इवैल्यूएशन स्टडी. दिस इज ऑल्सो कम अंडर द सर्वे स्टडीज. Then to differentiate evaluative study and experimental study, I can say that evaluative study इसमें भी हम इफेक्टिवनेस स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी में भी इफेक्टिवनेस स्टडी करते हैं. इवैल्यूएटिव स्टडी में कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, whereas in an experimental study you will find that there is one control group, one experimental group and one control group. And describe the situation or effectiveness by using the both qualitative and quantitative data in evaluative study. Evaluative study में दो प्रकार का डाटा आप ले सकते हैं. आप इंटरव्यू कर सकते हैं, क्वेश्चनियर भी यूज कर सकते हैं, टेस्ट भी यूज कर सकते हैं. बट इन एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एज यू हैव टू डू ए टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, you have a control group and experimental group, only you will get the quantitative data. Here there is no space, no place for getting the qualitative data. And only one group is studied in the evaluative study, whereas in experimental research, both control and experimental group is studied. So friends, today we discussed the descriptive studies. Just to recapitulate, we discussed different sub-methods, different methods that come under the descriptive studies. And for conceptualizing your MA education dissertation, you can select any of the method that's come under the descriptive research. For further queries, you can write a mail to me, niradhar@igno.ac.in. You can also make me a telephone call. My intercom is 2994, but at present I am at home. When I will come to office, then I can attend your phone call. You can visit my Facebook page, my YouTube channel and my Twitter handle. You will find many useful video lessons relating to your program. Okay, so I am hopeful that today's Facebook live session might have helped a lot to you all for conceptualizing and conducting your study. And in my next session, I will discuss other method that's come under research methodology in education. Thank you.